नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज भादरा से मैं मनप्रीत सिंह बीए पार्ट सेकंड इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे जीके चेस्टरटन, गिलबर्ट की चेस्टरटन, उनका ऐसे पढ़ रहे थे ऑन द प्लेजर्स ऑफ नो लॉन्गर बीइंग वेरी यंग. So we read about the essays, then we read the summary of the essay. Now we will move on to the text of the essay. टेक्स्ट जो है वो मैंने पहले भी पोस्ट किया है आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं. वीडियो में भी आपको साथ के साथ टेक्स्ट नज़र आता रहेगा, साथ के साथ मैं पढ़ के इसको एक्सप्लेन करता रहूँगा. There are advantages in the advance through middle age into later life which are very seldom stated in a sensible way. So from the very beginning the writer starts with a paradoxical line there. He says there are advantages, कुछ ऐसे लाभ है in the advance through middle age into later life which are very seldom stated in sensible way, that are not stated very seldom stated, they are not stated very often in sensible way. They are often stated how? Generally they are stated in a sentimental way. Sentimental way में उन्हें बताया जाता है कि बूढ़े होने के ये लाभ है जज्बाती तरीके से. In a general suggestion, एक general suggestion में जैसे कि that all old men are equipped with beautiful snowy beards like Father Christmas and rejoice in unfathomable wisdom like Nestor. So the most common benefit that are or the profits of being old that is stated in a sentimental way is that old age has its own appearance like a snowy beard, like Father Christmas or Santa Claus, and unfathomable wisdom, buddhimata, like Nestor. Nestor was a Greek wise man. Here's a note about him. He is also a character in Iliad by Homer. जो ट्रॉय की स्टोरी है उसमें भी उनका कैरेक्टर है. उन्हें एक वाइज मैन के रूप में जाना जाता है. ही इज़ कंसिडर्ड टू बी 110 years old. All this has caused the young people to be skeptical about the real advantages of old people. जब सेंटिमेंटली लोग आपको बताएंगे कि बूढ़ा होने के ये फ़ायदे हैं तो इससे क्या होगा? What happens that the young people start to doubt about the real advantages of being old. And what do they do? And the true statement of those advantages sounds like a paradox. And when someone who states those advantages in reality, who states the true state of those advantages, he sounds like a contradictory or a paradoxical statement to those young people. I would not say that old men grow wise, because I would not say that old men or every old man grows wise, for men never grow wise, because men never grow wise, and many old men retain a very attractive childishness and cheerful innocence. On the other hand, quite contradictory, that some people when they grow old, they start to behave like child, they start to behave like kids, and they retain a very attractive childishness and a cheerful innocence. एक प्रकार का उनके ऊपर प्यारा सा भोलापन आ जाता है. वो उल्टा विद्वान होने की बजाय वो बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं. Elderly people are often much more romantic than younger people. ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो रोमांटिक नहीं रहते, वाइज हो जाते हैं. Even they are more romantic than younger people, and sometimes even more adventurous, because having begun to realize, they start to realize that how many things they do not know. उन्हें बहुत सी चीज़ें ऐसी लगती हैं that they haven't yet felt or experienced or practiced or known yet. They start to investigate those things, or they start to feel adventurous about knowing those things. It is true proverb, ये एक बहुत ही सच्ची proverb है, no doubt, निस्संदेह, which says that there is no fool like an old fool, कि मूर्खों में सबसे बड़ा मूर्ख वो होता है जो बूढ़ा मूर्ख होता है. Perhaps there is no fool who is half so happy in his own fool's paradise. And the essayist even goes on to say that there is no fool even नो फूल हु इज़ हाफ सो हैप्पी, कि कोई मूर्ख आधा भी खुश नहीं हो सकता जितना एक उस फूल के जितना जो बूढ़ा मूर्ख होता है, जो अपने खुद के फूल्स पैराडाइज में खुश हो, अपनी खुद की बनाई हुई दुनिया में खुश रहता हो. उसके जितना खुश कोई और मूर्ख नहीं हो सकता. बट whoever this may be, however this may be, चाहे ये कैसा भी हो, it is true, ये सत्य है, that the advantages of maturity are not those which are generally urged, even the praise of it. The real advantages, the real profits, the real pros of being old
are not those that are generally urged in even the praise of it, but they are, when they are truly urged, they sound like an almost comic contradiction. When the true advantages, true benefits of old days are stated, they sound almost like a comic contradiction. They sound almost like a contradictory statement that does not seem right, that does not seem true. For instance, then he goes on to give some examples. One pleasure attached to growing older is that many things seems to be growing younger. पहला प्लेजर जो दैट इज़ अटैच टू ग्रोइंग ओल्डर इज़ दैट मैनी थिंग, बहुत सी ऐसी चीज़ें सीम टू बी ग्रोइंग यंगर, दे स्टार्ट टू लुक लाइक ग्रोइंग यंगर, ग्रोइंग फ्रेशर एंड मोर लाइवली देन वी वंस सपोज देम टू बी। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ऐसे लगने लगता है कि अब वो यंग हो रही हैं, वो फ्रेश हो रही हैं एंड मोर लाइवली, जीवंत हो रही हैं, देन वी वंस सपोज देम टू बी, देन वी थॉट दे वर। We begin to see significance, we start to see the real meaning, significance, or in other words to see life, we start to see real life in large numbers of tradition। किन में ये real life और significance किस में देखते हैं हम? traditions में, institutions में, magazines में, कोर्ट्स ऑफ मैनर्स में, दैट सीम इन आवर फर्स्ट डेज टू बी डेड। जो पहले हम जिन्हें जवानी में बस यूँ ही मानते थे कि ये तो डेड हैं, पीपल आर जस्ट फॉलोइंग दैम आउट ऑफ जस्ट ट्रेडिशन, आउट ऑफ जस्ट देयर कंजर्वेटिव व्यूज़, बट दे स्टार्ट टू फील लाइक रियल, दे स्टार्ट टू फील लाइक लाइवली। A young man grows up in a world that often seems to him intolerably old. A young man who is growing old, he lives in a world that seems to him intolerably, जिसे सहा ना जा सके, unbearably old. He grows up among proverbs and precepts that appear to be quite stiff and senseless. So a young man, he grows up among प्रोवर्ब्स एंड परसेप्ट्स, ऐसी कहावतें और इस प्रकार की मान्यताओं के बीच वो बड़ा होता है, दैट अपीयर टू बी क्वाइट स्टिफ and senseless. They seem like they are old and they do not mean anything yet, they do not have any significance in the modern world, but as he grows old he sees their significance, he sees that they are as alive as anything else. He seems to be stuffed with stale things. उसे लगता है कि ये जो जहान है ये स्टेल, बासी, पुरानी हो चुकी चीज़ों से भरा पड़ा है। To be given the stones of death instead of bread of life. He feels like he has been given the stones of death instead of bread of life. To be fed on the dust of dead past, to live on a town of tombs. He feels like he is living among dead. He feels like he is living among inanimate things and inanimate traditions, maxims, etc., rather than in living human or living things. To be fed on the dust of dead past, to live in a town of tombs. ऐसे लगता है जैसे बीते हुए कल की डस्ट धूल के ऊपर जी रहा हो, जैसे कि live in a town of tombs, जैसे कि कब्रों की टाउन में जी रहा हो। उसे लगता है कि हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारी जो कहावतें हैं, वो सब जो हैं पुरानी बनी आ रही हैं, चलती आ रही हैं। उन्हें पीपल दे आर जस्ट फॉलोइंग दैम आउट ऑफ जस्ट देयर रिस्पेक्ट और देयर कंजर्वेटिव व्यूज़, बट दे आर नॉट अलाइव। As he grows old, जैसे वो बूढ़ा होता है, he start to see the real significance. Why? Because he sees them in practical life happening, those things, he sees them becoming alive around him. It is a very natural mistake. ये एक बहुत ही natural mistake है, but it is a mistake. The advantage of advancing years, ये जो ग्रीन में टेक्स्ट है, the advantage of advancing years lies in discovering that traditions are true and therefore alive. The real advantage, the real benefit, the real pros of advancing years lies in the discovering. इस discovery, इस खोज में ही सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है, क्या खोज? that the traditions are true. जो भी ट्रेडिशन हैं वो सत्य हैं, and therefore alive, they are real and alive. Indeed, a tradition is not even traditional except when it is alive. Even the essayist goes on to say that the tradition is not even traditional. A tradition, अब ट्रेडिशन एक ट्रेडिशन कहलाने के लायक ही नहीं है अगर when it is alive, जब तक वो खुद जीवित ना हो। It is great fun to find out that the world has not repeat proverbs because they are proverbial, but because they are practical. जब आपको ये पता चलता है कि जहान ने जो proverbs हैं उन्हें इसलिए रिपीट नहीं किया because they are proverbial, but because they are practical, they are alive. उन्होंने इसलिए इन्हें यूज़ किया है proverbs को क्योंकि वो रियल हैं और रियलिटी में वो अलाइव हैं। जैसे
he goes on to give some examples. Until I owned a dog, जब तक I didn't have a dog, I never knew what is meant by the proverb about letting a sleeping dog lie. I didn't know, एक proverb होती है कि सोते हुए कुत्ते को सोने दो. I didn't know what is meant. I did not know, I never knew, मुझे पता ही नहीं था what is meant by the proverb. इस proverb का मतलब क्यों, ऐसी proverb बनी क्यों है, क्यों कहा जाता है let a sleeping dog lie, सोते हुए कुत्ते को सोने दो. बिकॉज जब मैंने कुत्ता रखा तब मुझे एहसास हुआ कि ऐसा करना सही है. और अ फेबल, और एक और कथा जो मतलब फेबल होती है, दंत कथा टाइप, अबाउट द डॉग इन मैंजर. डॉग इन मैंजर इज़ अ type of proverb where a person who is in not sure, who does not share his food with others. Dogs do not share with, they stay in a perplexed or confused stage where they do not share their food with other dogs. So a person, जब कोई आदमी he feels confused about he does not use himself or let it share with others, तब हम कहते हैं he feels like he is behaving like a dog in a manger. Now those dead phrases are quite alive to me. Now ये जो phrases थी जो dog के बारे में थी, they are quite alive to me, for they are parts of a perfectly practical psychology. क्योंकि ये perfectly practical व्यवहारिक मनोविज्ञान से जुड़ी हुई हैं, इसलिए they are alive to me. Until I went to live in the country, before I was living in a country, I had no notion of the meaning of the maxim, it's an ill wind that blows nobody good. कि जब तक मैं शहर में रह रहा था, गांव में रह के मैंने देखा ही नहीं था, तब तक मुझे नहीं पता था इस प्रोवर्ब का मतलब कि इट इज़ एन इल विंड दैट ब्लोस नोबडी गुड, कि ऐसी कोई हवा ही नहीं है जो किसी का फ़ायदा ना करती हो. कोई ना कोई हवा किसी, हम जैसे शहर में रहते हैं तब हम रियलाइज़ नहीं करते कि कौन सा मौसम का क्या फ़ायदा है. गर्मी का फ़ायदा फसलों को किस प्रकार से होता है, सर्दी का फ़ायदा किस प्रकार से होता है. तो ये कहावत है कि जो भी मौसम होता है, जिस प्रकार से भी हवा बहती है, उसका कोई ना कोई फ़ायदा होता है. इट इज़ एन इल विंड दैट ब्लोस नोबडी गुड, कि वही बुरी हवा है जो किसी का फ़ायदा ना करे, तो ऐसा नहीं होता. ये आप जब गाँव में रहते हैं, जब कंट्री साइड में रहते हैं, तब आप रियलाइज़ करते हैं कि हर मौसम का अपना एक फ़ायदा है. और ये तब तक नहीं आता जब तक आप बड़े होंगे. धीरे धीरे आप इन बड़े होने के बाद आप देखते हैं, आप गाँवों में रहते हैं, कंट्री साइड में रहते हैं. वैसा ही एसेस्ट कह रहे हैं कि अनटिल आई वेंट टू लिव इन अ कंट्री, जब तक मैं कंट्री में रहने के लिए नहीं गया, आई हैड नो नोशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द मैक्सिम, इट्स एन इल विंड दैट ब्लोस नोबडी गुड. ठीक है. नाउ इट सीम्स टू मी एज पर्टिनेंट एंड इवन पंजेंट. अब मेरे लिए एज पर्टिनेंट मीन्स होता है रिलेटिव, एज रिलेटिव एंड इवन पंजेंट मतलब पंजेंट जो तेज़ होता है चुमने में. एज इफ़ इट वर अ न्यू रिमार्क जस्ट मेड टू मी बाय अ नेबर एट द गार्डन गेट. कि वैसे तो ये मैगज़ीन मैं हमेशा से सुनता आ रहा था, लेकिन जब मैंने वास्तव में इसे खुद अपनी आँखों से देखा कि ये सत्य है, तब मेरे लिए उतनी ही नई हो गई जैसा कि अभी किसी ने, मेरे पड़ोसी ने गार्डन गेट के ऊपर ये कहावत मुझे सुनाई हो. तो ये कह रहे हैं द वर्ड स्टार्ट टू ग्रो न्यूअर, नया लगने लगता है. जो चीज़ें मरी हुई लगती थी वो वास्तव में नई लगने लगती हैं. इट इज़ समथिंग टू कम टू लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ लिविंग एंड सिग्निफिकेंट थिंग्स इंस्टेड ऑफ अ डेड एंड अनमीनिंग थिंग्स. जैसे जैसे आप बूढ़े होते हैं, यू स्टार्ट टू कम एंड लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ लिविंग एंड सिग्निफिकेंट थिंग्स. आप जीवित और मान्यतापूर्ण चीज़ों के बीच आके रहने लगते हैं, इंस्टेड ऑफ डेड एंड अनमीनिंगफुल थिंग्स. मरी हुई और अनमीनिंगफुल थिंग, व्यर्थ चीज़ों के बीच रहने की बजाय. एंड इट इज़ यूथ इन रिवोल्ट. ऐसे लगता है जैसे जवानी है जो विरोध कर रही है. इवन इन द राइचियस रिवोल्ट, इवन इन राइचियस, सही प्रकार राइचियस जो सही हो, उस प्रकार के विद्रोह में विच सीज इज सराउंडिंग एज डेड एंड अनमीनिंग. तो ये तो ऐसे है, इट इज़ अ यूथ इन रिवोल्ट इवन इन राइचियस रिवोल्ट विच सीज इज सराउंडिंग्स एज डेड एंड अन. अगर कोई यूथ अपने आसपास की सराउंडिंग को डेड और अनमीनिंगफुल देखता है, तो वो यूथ रिवोल्टिंग है, वो उस काम के लायक नहीं है, वो वास्तविक जीवन जी नहीं रहा, उसका विद्रोह कर रहा है. इट इज़ ओल्ड एज, ये वास्तव में ओल्ड एज है. एंड इवन सेकेंड चाइल्डहुड, इवन द सेकेंड चाइल्डहुड दैट हैज़ कम टू सी दैट एवरीथिंग मीन्स समथिंग. कि हर उस कहावत, हर उस बनी आई रीति रिवाज, ट्रेडिशन, मैक्सिम, उन सब का अपना कुछ ना कुछ मतलब है. दैट लाइफ इटसेल्फ हैज़ नेवर डाइड, कि जीवन कभी भी पूरे रूप से मरता नहीं है. फिर ये एक और एग्जांपल देते हैं.
For instance, we just seen a staggering turn of wheel of fortune which has brought all the modern material pride and prosperity to us time still. ये ऐसे लिखा गया 1930s के बाद में. 1930s जो है इट वाज द एरा ऑफ ग्रेट डिप्रेशन जिसे कहा जाता है, जब अमेरिका में इकोनॉमिक मंदी आई, इकोनॉमिक एक डिकेडेंस का टाइम था जिसमें बहुत से लोग बेरोज़गार हुए, बहुत से जो इंडस्ट्रीज़ थी वो शट डाउन हो गई. तो उसके बारे में इन्होंने कहा कि जैसे हम कहा करते थे व्हील ऑफ फॉर्च्यून कि जो भाग्य का जो चक्का है वो घूमता रहता है, जो चीज़ ऊपर है वो नीचे आएगी, नीचे है वो ऊपर जाएगी. हम पहले इसे नहीं मानते थे, लेकिन जब हमने देखा कि अमेरिका जैसे या फिर दुनिया में हमने देखा कि मॉडर्न मटेरियल प्राइड एंड प्रोस्पेरिटी, जो मॉडर्न मटेरियल प्राइड जो भौतिकतावादी प्राइड था और प्रोस्पेरिटी थी, यानी कि जो प्रोस्पेरिटी जो मतलब धन दौलत थी, सब कुछ था, उस सब को हमने एक स्टैंड स्टिल, एक प्रकार से रुकते हुए देखा. उसको बढ़ने की बजाय रुकते हुए जब हमने देखा तब हमें रियलाइज़ हुआ कि ये जो रिमार्क है, स्टैगरिंग रिमार्क, क्या द व्हील ऑफ फॉर्च्यून वो सही है, वो जीवित हो उठा. उस दुनिया को देखने के बाद वो जीवित हो उठा. इसके बाद ये अमेरिका का एग्जाम्पल देते हैं. अमेरिका विच अ ईयर और टू एगो सीम टू हैव बिकम वन वास्ट एल्डोरेडो स्टडेड विद सिटीज़ ऑफ गोल्ड. एल्डोरेडो एक स्पेनिश टर्म है जिसका मतलब होता है सोने का शहर. तो ऐसे लगने लगा था कि अमेरिका जो 1 साल या 2 साल पहले ऐसे लगता था, एगो सीम टू हैव बिकम वन वास्ट एल्डोरेडो स्टडेड विद सिटीज़ ऑफ गोल्ड. ऐसे लगता था कि वो सिटीज़ ऑफ गोल्ड, सोने की नगरियों से भरा हुआ एल्डोरेडो है. इज़ ऑलमोस्ट एज मच एम्बेरस्ड एज इंग्लैंड. आज उसकी हालत उतनी ही एम्बेरस्ड होता है, शर्मिंदा, आज उसकी हालत उतनी ही पतली है जैसे जितनी कि इंग्लैंड की. एंड रियली मच मोर एम्बेरस्ड दैन आयरलैंड. इवन वो इंग्लैंड से भी नीचे, आयरलैंड से भी ज़्यादा एम्बेरस्ड इस टाइम है. इतनी बुरी हालत अमेरिका की 30s के ग्रेट डिप्रेशन में हो गई थी. The industrial countries are actually finding it difficult to be industrial, while the old agricultural countries still find it possible to be industrious. कि ये जो औद्योगिक देश हैं, जो उद्योगों पे बेस्ड कंट्रीज़ हैं, दे आर एक्चुअली फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू बी इंडस्ट्रियल. उनके लिए तो औद्योगिक बने रहना मुश्किल हो गया है. वाइल द ओल्ड एग्रीकल्चरल कंट्रीज़, जो पुरानी कृषि आधारित देश हैं, स्टिल फाइंड इट पॉसिबल टू बी इंडस्ट्रियस. उनके लिए तो थोड़ा इंडस्ट्रियस हो पाना संभव है. तो यहाँ पे जो इसे बोलते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चक्के का जैसे टेबल का टर्न हो जाना या चक्के का ऊपर घूम जाना, जिसमें जो नीचे कंट्रीज़ हैं वो ऊपर की ओर बढ़ रही हैं, जो ऊपर वाली कंट्री जो अमेरिका जैसी थी वो नीचे गिर रही थी. उस हालात के ऊपर ये कहते हैं कि जैसे ओल्ड एज आई तो हमने ये देखा, अगर ओल्ड एज जवानी में हम इसे कभी देखा ही नहीं, तब हमारे लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाली जो कहावत है वो जीवंत नहीं हो पाती. इट वुड नेवर कम अलाइव टू अस. सो यहाँ तक हम इसे पढ़ेंगे. नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आप इसे पढ़ने का प्रयास करें. सिंपल है, इंग्लिश ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अच्छे शब्द हैं और इसका PDF मैंने ऑलरेडी शेयर किया है. जो भी अगर आपको कोई समस्या आती है, कोई कमेंट हो आपका, तो आप पोस्ट कर सकते हैं. लास्ट मैंने एक असाइनमेंट गूगल क्लासरूम पे भी डाला था, आप उसे भी देखिए. उसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, अगर आप उन्हें आंसर कर सकते हैं तो आप उन्हें सबमिट करें. थैंक यू.